नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। 3 वीक बाद दिवाली है और मैंने सोचा कि हर बार नए क्लीनिंग वीडियोस बनाने से अच्छा है कि जो मेरे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं क्लीनिंग के एंड किस तरीके से हम दिवाली के लिए एडवांस में प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन सारे वीडियोस में से जो अच्छे हैक्स हैं, टिप्स हैं, उन्हें एक साथ कंपाइल करा जाए ताकि आप और मैं दोनों इनकी हेल्प से अपने घर को दिवाली के लिए एडवांस में ही अच्छी तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके रख पाएं। तो ये एक कंपाइलेशन वीडियो है। Diwali is the best time for purging. If you have a child, it's good to look around in the kids' room, discard the broken toys, the outgrown clothes, and the toys which your kid doesn't play with anymore. And if they are in the good shape, they can be donated and used by someone who needs it. Always look around in your home to clean out the things which you don't need any further. Either discard them or give it to someone who can use it. Cover everything before you actually start the cleaning. Use old bed sheets to cover beds, sofa, chairs and lights. Electric boards and all the electronics in your house need to be properly taken care of, like the switchboards, TV, Wi-Fi router, printers, lamps and etc. Use an electronic component cleaner or simply use rubbing alcohol. Take it on the cloth and wipe down the switchboards nicely. Don't take too much solution and directly don't apply it on the switchboards. Clean the TV using a soft cloth and make sure to clean it in the circular motion. Don't clean it in the horizontal or vertical way like this. The routers, as we all know, are actually playing an important role in our day-to-day life. So make sure to keep them clean using a microfiber cloth and the same solution in it to clean it nicely. Printers, intercoms, landlines, clean them the same way. To clean the lamps or the table lamps, simply use a lint roller to clean the lampshade. And for cleaning the bulb, spray some sanitizer on the cloth and clean the bulb. Use wet cloth to clean the rest of the lamp's bulb. Clean the artifacts which you must have taken off from the walls and the shelves. Now to clean the decor items, I like to make a solution of water and a mild detergent. Mix it well and believe me, you will notice a change in your decor items. You will see them extra clean and shiny. Now just dip the cloth in the solution and clean the decor pieces. The decor pieces which can be directly dipped into the solution, just dip them. Use a brush and a scrubber to clean them nicely. And in this way, you will save some extra time and later wipe it with a cloth. The decor items like these, use a brush to clean such intricate areas and wipe it down once again with the same solution for the shine. I like to clean all the decor items in my home with the same solution throughout the year. दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर और हम सब ने ही अपना घर डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम कोई भी चीज़ हैंग करने के लिए ड्रिल करते हैं तो ड्रिल के साथ में बहुत सारा डस्ट भी फ्लोर पर और अपहोल्स्ट्री पर आ जाता है। तो आप इस तरीके का एक प्लास्टिक बैग ले सकते हैं और मैस्किंग टेप। बैग के एक साइड पे आपको कुछ इस तरीके से मैस्किंग टेप को फिक्स कर देना है एंड देन जहाँ पर भी आपको ड्रिल करना है बस उस ड्रिल पॉइंट के नीचे आप इस टेप को कुछ इस तरीके से वॉल पर फिक्स कर दें। आपका जो भी डस्ट होगा जब भी आप ड्रिल करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल भी सारा का सारा इस प्लास्टिक बैग के अंदर जाएगा। जब भी आप बैग चूज करें तो मेक श्योर करें आप इस तरीके का जो एनवेलप स्टाइल प्लास्टिक बैग्स होते हैं आप उसको ही चूज करें। There are two types of people. First, जिन्हें कुछ इस तरीके से कर्टन को गैदर करके कर्टन टैप्स लगाना पसंद होता है। सेकेंड, जो ऐसे स्लाइड करते हैं, बट हम दोनों ही केसेस में ये लाइट के लिए करते हैं। सो आप इस तरीके से जो हैंडल्स हमारे जूस बॉक्स या सर्फ एक्सेल बॉक्सेस के साथ में आते हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं
कर्टन टैब्स बनाने के लिए। तो एक तरफ से आपको इसे कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है और दूसरे एंड में जो ये स्लॉट है उसके अंदर से आपको इसका जो लॉक है उसे पास करवाना है और बस आपका जो DIY कर्टन टैब्स है एक वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में रेडी हो गया। आप इस तरीके से टर्न करके भी रख सकते हैं। इसको डिटैच और अटैच करना बहुत ही ईजी है। जब आपको नीड ना हो आप इसे डिटैच करें और आपके बेड साइड टेबल में रख दें ताकि ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड भी रहे। तो अगर आप भी दिवाली के लिए कोई टेम्पररी सिटिंग कॉर्नर क्रिएट कर रहे हैं तो कर्टन रॉड्स आप कैसे विदाउट एनी ड्रिल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप या तो PVC पाइप लें या फिर इस तरीके का जो एक्सटेंडेबल टेंशन रॉड्स आती हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। अब जहां पर भी जिस भी वॉल के ऊपर आपको कर्टन रॉड लगाना है उस वॉल के ऊपर इसे रखें और नीचे पेंसिल से एक सेमी सर्कल मार्क कर लें। उस सेमी सर्कल पर अब आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं। अब सबसे छोटा वाला नेल लेना है और जो पॉइंट्स हमने मार्क करे हैं उसमें आपको इनको अच्छी तरीके से वॉल पर फिक्स कर देना है। अगर आप बड़े नेल लेंगे तो आप ऊपर राइट साइड पे देख सकते हो एक होल का मार्क दिख रहा है, बट छोटे वाले नेल्स अगर आप यूज करते हो तो वो वॉल पे बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे जब आप उन्हें निकालेंगे। इस तरीके से एक स्टैंड बन जाएगा जिसके ऊपर आपका ये जो रॉड है, मैंने तो यहाँ पर टेंशन रॉड यूज करा है, जितना चाहूँ मैं इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ। अब दोनों तरफ आप इसी तरीके से रख लें। इसका बेस रेडी। अब आप इस पे हल्के वाले कर्टन्स लगाएंगे तो ये रॉड आपकी बिल्कुल नीचे नहीं आएगी। जैसे कि दिवाली आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हम वॉल्स के ऊपर बहुत सारे पेंटिंग जरूर लगाते हैं। अब वो पेंटिंग्स आप स्ट्रेट लगा रहे हैं सेंटर पे कि नहीं, उसके लिए आप डेफिनेटली इस तरीके के पिक्चर लेवलर में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास ऐसा लेवलर नहीं है तो आप कोई भी एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास का बॉटल ले सकते हैं, उसमें पानी भरिए या फिर आप कोक भी यूज कर सकते हैं और पिक्चर के टॉप पर आपको इस तरीके से इस बॉटल को रखना है और उसे आप तब तक लेफ्ट एंड राइट में टिल्ट करिए जब तक कि आपको पानी का लेवल एकदम सेंटर पे ना आ जाए। और इस तरीके से आपके जो सारे पिक्चर्स हैं आप जब भी उसे वॉल पर हैंग करेंगे एकदम सेंटर पर और स्ट्रेट होंगे। Today I am going to tell you an easiest way to clean these window tracks without using any vacuum cleaner or special kind of brush. So for that you will only need slime. जो बच्चों के खेलने वाले स्लाइम होते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके पास में स्लाइम जरूर मिल जाएगा। तो टॉय बास्केट में से जो सबसे पुराना स्लाइम हो आप उसको यूज करें, नए स्लाइम की भी जरूरत नहीं है। ट्रैक के ऊपर जहाँ पर भी डस्ट है, चाहे वो आपके कॉर्नर्स पर ही क्यों ना हो, बस इस तरीके से आपको उसे डैप करना है डस्ट पार्टिकल के ऊपर। फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल भी होगा वो बहुत आराम से ये स्लाइम उसको अपने अंदर ट्रैप करता जाएगा और आप देखोगे विद इन अ मिनट और सो आपका जो ट्रैक है वो कम्प्लीटली डस्ट फ्री हो जाएगा। मैंने इसको बहुत सारे विंडो ट्रैक्स के ऊपर ट्राई करके देखा एंड आई फाउंड दिस वन क्वाइट ईजी टू यूज। इसके लिए आपको बार बार वैक्यूम क्लीनर निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब आप इन ट्रैक्स को अच्छे से क्लीन कर लें, डस्ट सारी की सारी कुछ इस तरीके से स्लाइम पे आ जाए, तो बस आपको एक गीला सा कपड़ा लेना है, वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें और एक बार इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर दें। रूम के अंदर स्पेस है तो बेड्स को डिस्प्लेस करिए, क्योंकि देखिए इसके पीछे बहुत सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। इसे आप ब्रूम या फिर वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। जब हम बेड्स को हटाते हैं तो पीछे वाली वॉल में भी बहुत सारी डस्ट होती है, तो उसे आप एक ब्रश से रिमूव कर दें। इसी तरीके से फर्नीचर के पीछे बहुत सारे कोबवेब्स और डस्ट लग जाती है, जिसको आप एक नॉर्मल फेदर ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। इस जगह को सबसे पहले मॉप करें, ड्राई होने दें, उसके बाद में ही बेड को वापस उसकी जगह पर शिफ्ट करें। अगर आपके रूम में स्पेस नहीं है और बेड आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके का गैप डस्टर यूज कर सकते हैं डस्ट को हटाने के लिए। घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि एयर प्यूरिफायर, ह्यूमिडिफायर, एसी या